Okay, so hello everyone, this is Akshay here, and let us continue with the today's streak. That is, today's question name is the transitive closure of a graph. तो हमें करना क्या है यार, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हर एक वर्टेक्स बाकी सारे वर्टेक्स को विजिट कर पाता है कि नहीं, ठीक है। तो मैं आपको तुरंत से इनपुट और आउटपुट समझा देता हूँ। सो लेट्स से यू हैव बीन गिवन दिस ग्राफ एज I have named the indexes with the red mark, as you can see here, as the column index and the row index, right? So 0 0 cell is pointing to 1, so that means 0 can be visited to 0. That makes sense, right? Similarly, 0 is connected to 1, right, with a directed edge. The question says that, आप क्वेश्चन पढ़ लेना यार, मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, राइट। दैट द रीचेबिलिटी, ओके कहाँ लिखा हुआ है, it means there is a path from vertex I to J, correct, and the directed graph is represented, okay, the directed graph, right. So that is why 0 1 column has the cell value, so that means there is a directed edge from 0 to 1. That is what I have made here, right. Similarly, 0 to 2, there is value 0, so there is no directed edge from 0 to 2, and for 0 to 3 the value is again 1, so that made 0 to 3 a directed edge. Similarly, I have drawn for the other values as well. So for 1, it is for 1 and 1 it is mentioned as 1, so definitely 1 can visit 1, so no need to point a directed edge pointing to itself. Similarly, for 1 to 2, you have 1, so that is 1 is pointing to 2. Similarly, for 2, the diagonal elements, the diagonal values, we can ignore it. 2 to 3, there is 1 again directed edge, so 2 to 3 I have 1 directed one, I have made one directed edge. For 3 to 3, so again we can ignore the elements. So this is your current graph, and now you have to print the matrix. So you can clearly see that the 0 is can visit 1, 0 can visit 2 as well, 0 can visit 3 as well, right. Definitely you can see if you follow the directed edge, and that is why for this column, if I just mention the indexes again in the output, 0 1 2 3, it is 0 1 2 3. For the first row, that is for the 0th index, it is reachable to all other nodes, and that is why all ones are there. Now for the 1 can reach to 2, right, and using this pass 1 2 3, it can reach to 3 as well. So for 2 and 3, it have the value 1, and the diagonal elements will always be pointing to 1, because 1 can reach to itself as well, right. Great. So now 2 can only reach to 3 using this directed edge. It cannot go 2 to 1 because there's a directed edge, and that is not a undirected edge, correct. So it can visit only 3 and itself. Similarly, for 3, there are edges coming towards it, and there are no edges coming towards in the outside direction, right. So that is why it can visit only itself, correct. दैट्स द आउटपुट, ठीक है। तो हम इनपुट आउटपुट समझ गए यार। देखो हमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल यार। अगर आपको डीएफएस आता है, अगेन दिस क्वेश्चन इज प्योरली अ डीएफएस ट्रावर्सल क्वेश्चन। अगर आपके क्वेश्चन नहीं आता है तो मेरी ग्राफ प्लेस पे जाओ, डीएफएस वीडियो पहली या दूसरी वीडियो है ऑफ अप्रॉक्स 10 मिनट्स, आप उसको देख के आओ। इस क्वेश्चन को वापस से सोचो कि कैसे कर सकते हैं यार, बिल्कुल भी इस चीज़ को मिस मत करना, राइट। आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ये मोटिव होना चाहिए, राइट। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, डेफिनेटली आप स्टक हुए होगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस डीएफएस वीडियो को जाओ, देखो, इस क्वेश्चन को वापस से खुद से सोचना डीएफएस से कैसे कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी सोच पाए, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, राइट। उतना ही सोचना जरूरी है। चलो, आई होप आपने वो डीएफएस का वीडियो देखा और वापस से कंटिन्यू कर रहे हो, दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। और आप सोच पाए तो और भी अच्छी बात है। चलो अब शुरू करते हैं कि इस क्वेश्चन को कर कैसे सकते हैं। तो नॉर्मल डीएफएस करेंगे यार। हम क्या कर सकते हैं, हम बस इतना बताना है कि ये एक नोड जो है 0 कैन बी रीच टू अदर नोड्स एज वेल, टू ऑल द अदर नोड्स और नॉट, राइट। हम 0 से ट्रैवर्सल शुरू कर देंगे, डीएफएस ट्रैवर्सल। मेरे पास एडजेसेंसी लिस्ट होगी जहाँ पे मार्क्ड होगा कि कौन से नोड का कौन सा नेबर है, ठीक है। हमें इटसेल्फ नोड पे नहीं मूव करना है, राइट। 0 पे मूव करके क्या ही कर लेगा, हमें उससे मतलब नहीं है, करेक्ट। सो दैट इज वाई वी हैव मेड अ न्यू मॉडिफाइड एडजेसेंसी लिस्ट, जहाँ पे हम सारे से फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स को हमने 0 मार्क किया है, इफ यू कैन सी, राइट। और बाकी सारे वैल्यूज को हमने एज इट इज उठा लिया, 101, एंड देन ऑल द वैल्यूज हमने डायरेक्टली उठाया, राइट। अब हम ऐसे डीएफएस ट्रैवर्सल करते हैं। तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया यार, आप इसको कोड कर लेना। स्टेप 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2D एरे लिस्ट बना लेंगे, राइट। अब हमें कॉल कैसे लगानी, राइट। लेट्स से हम 0 पे हैं, तो मैं डीएफएस कॉल करूंगा इसको, तो ये 1 पे चला जाएगा। और 1 के लिए अगेन रिकर्सिव कॉल होगा, राइट। तो 1 देखेगा, अच्छा मेरा नेबर कौन कौन सा है, 2, आई विल गो फॉर 2 एज वेल, राइट। तो मैं 0 से जब 1 गया, राइट, जब मैं 0 से 1 गया, तो मैं क्या कर लूँगा, मैं 0,0 को, मेरे पास एक 2D लिस्ट होगी, लेट्स से 0 1 2 3 एंड 0 1 2 3, तो मैं 0,0 को 1 मार्क कर लूँगा, ठीक है। सिमिलरली जब 0 1 पे गया, तो मैं इसको 0,1 को 1 मार्क कर लूँगा। 1 क्या किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, राइट। इसको मैं 0,2 को 1 मार्क कर लूँगा। 2 इज अगेन कनेक्टेड टू 3, तो मैं यहाँ पे 0,3 को 1 मार्क कर लूँगा, ठीक है। ठीक है, अब रिकर्सिव कॉल वापस आएगा यार, करेक्ट।
3 से मैं वापस आऊँगा, 3 का क्योंकि और कोई नेबर बचा नहीं है तो मैं 3 पे वापस आऊँगा, 2 का भी और कोई नेबर बचा नहीं है तो मैं इस पे वापस आऊँगा, 1 का भी देयर इज़ नो अनदर नेबर लेफ्ट दैट नीड्स टू बी विजिटेड तो मैं वापस आऊँगा, राइट। अब 0 पे ऑल द नेबर्स आर विजिटेड बट एक 3 नेबर है जो विजिट नहीं हुआ था, तो मैं 0,3 पे जाऊँगा, राइट। और क्या मैं इस पर डीएफएस कॉल लगाऊँ वापस से? नहीं लगाऊंगा, क्योंकि 3 जो है वो ऑलरेडी विजिटेड था एंड वी मार्क्ड इट एज 1। सो डेफिनेटली हम एक यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के साथ हम एक थोड़ा सा वो करेंगे, दो कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, राइट। एक तो हम विजिटेड वाला चेक कर लेंगे और एक हम चेक कर लेंगे डीएफएस कॉल आगे बढ़ने का, राइट, नेबर्स के। तो हम ये विजिटेड कहाँ से चेक करेंगे? हमने जो 2D अरे लिस्ट में जो अपडेट किया था हम वहीं से चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं अब कोड लिखता हूँ, स्टेप 1 लिखना बहुत ही आसान है, स्टेप 2 लिखना भी बहुत ही आसान है। मैं स्टेप 3 जो डीएफएस कॉल है मैं वो भी लिखता हूँ, राइट, एंड देन वी विल सी हाउ द एक्चुअल कोड इज रनिंग, ठीक है। आप भी ट्राई करो लिखने का खुद से। ओके, वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखा था यार, तो यहाँ पे मैंने बस विजिटेड का एक लाइन बनाया था, तो आई होप मेरे को लगता है आप ये चीज़ देख नहीं पाओगे बिकॉज ऑफ माई फेस वीडियो एट दी बॉटम साइड, तो कुछ भी नहीं था, राइट, ठीक है। अब कोड को रिज्यूम करते हैं, मैं कोड लिखता हूँ फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेप एंड देन वी कैन सी हाउ द recursive traversal is going on. So that is the code. Now let me explain you step by step. So this is the first thing that we have done, that we have made a modified adjacency list. भैया आपने क्यों बनाया यार? एग्जिस्टिंग में नहीं कर सकते थे क्या? हमारा जो स्टैंडर्ड DFS का कोड है यार उसमें हम यहाँ पे 0 ही मार्क करते हैं, राइट। तो जो स्टैंडर्ड DFS कोड होता है, अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको स्टैंडर्ड DFS और BFS का जो कोड होता है आपको याद ही हो जाएगा, राइट। तो आप उसी स्टैंडर्डाइज और कोड को आप हर बार यूज़ करो, दैट मेक्स मोर सेंस, राइट। ओके, तो इसने हमने देखो, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट भी किया है, इफ़ यू सी ये हमारा मॉडिफाइड एडजेसेंसी लिस्ट है विच इज़ कम्प्लीटली मैचिंग टू आर गिवन टू आर मॉडिफाइड वन प्रेजेंट इन द सूडो कोड, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ वापस से। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया यूजिंग दिस थिंग, राइट। हमने कुछ नहीं करना था, हमने सारे डायगोनल एलिमेंट्स को 0 करना था, राइट। तो हम जब इनिशियलाइज करते हैं तो ऑलरेडी इन जावा सारा एलिमेंट 0 से इनिशियलाइज होता है, राइट। सो वी आर चेकिंग इफ द एलिमेंट in the graph matrix if it is equals to 1 and if that is not a diagonal element then only update it with the value present in the graph, else do not do it, ठीक है। now the step 2 is we have made a 2D arrays because the return type was 2D arrays, else we would have done in a 2D array, right। then for each and every entry we are adding a new array list, ये करना पड़ता है यार, and then we are adding, as of now we are filling every entry in the 2D array with 0, ठीक है। जब हम डीएफएस कॉल करेंगे तो अपने आप अपडेट होते जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ एंड देन लेट मी शो यू द ट्रैवर्सल, ठीक है। तो ध्यान से देखना हम कैसे कैसे रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, ये एक बार समझ जाओगे तो कोड लिखना और समझना बहुत आसान हो जाएगा, करेक्ट। तो देखो हमने ऊपर मैंने ड्राइव में क्या दिखाया था, हम सारे वर्टेक्स के लिए कॉल करेंगे 0 से 1 2 3 तक गए, वी विल बी मार्किंग इट। सिमिलरली 0 का कॉल जब खत्म हो जाएगा देन वी विल बी स्टार्ट मेकिंग द कॉल फॉर 1 जब 1 का कॉल जब खत्म हो जाएगा तो 2 एंड 3 का कॉल करेंगे, राइट, ठीक है। तो वही हम करने वाले हैं यहाँ पे, बट इन टर्म्स ऑफ 2D मैट्रिक्स हम उसे फिल कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो ये जो फॉर लूप है यहाँ पे, राइट, तो सबसे पहले ये किसके लिए कॉल करेगा? ये कॉल होगा 0,0 के लिए, ठीक है। I, ADJ एंड आंसर इज नथिंग बट द 2D array list, ठीक है। तो 0,0 के लिए कॉल हुआ, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, आंसर डॉट गेट ऑफ आई डॉट सेट ऑफ j, 1, राइट। मतलब जो है ये आई है और ये जे है, सबसे पहले तो 0,0 को 1 मार्क कर दो। तो मैं एक बार यहाँ पे ADJ अपना बनाता हूँ और लेट्स से नॉट ADJ, मैं आंसर बनाता हूँ, ये आंसर, राइट, 0 1 2 3 एंड देन यू हैव 0 1 2 3, ठीक है। तो 0,0 का सबसे पहले मैंने 1 मार्क कर दिया, ग्रेट। अब मैंने क्या किया कि मैं जे राइट, यहाँ पे 0 जो है मैं इस रो में मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ, राइट। इसके कौन से नेबर्स हैं मैं वो देख रहा हूँ, राइट, जे के नेबर्स, करेक्ट। तो मैं जे के नेबर्स देखूँ तो वो कहाँ कहाँ पर है, ये एक तो 1 और एक 3 है, राइट। तो इसके लिए मैं कॉल लगाऊंगा अगेन, इट इज़ इक्वल्स टू 1 एंड आंसर डॉट गेट ऑफ आई कमा आई टी, मतलब 0,1 शुड बी इक्वल्स टू 0, मतलब वो विजिटेड नहीं है। अभी ये बात देखो तुरंत क्लियर हो जाएगी जब मैं 3-4 रिकर्सिव कॉल आपको दिखाऊंगा। ये किसको कॉल करेगा? 0,1 के लिए। सबसे पहले क्या हो रहा था, 0,1 को 1 मार्क करेगा, 1 मार्क हो जाएगा। देन अगेन रिकर्सिव कॉल होगी और हम 1 के नेबर्स में चले जाएंगे। देखो 1 का नेबर्स कहाँ है, 1 का नेबर्स एक 2 है बस, राइट। तो हम ये कॉल करेगा 0,2 के लिए, 0,2 को अगेन 1 मार्क करो। अब 2 के नेबर्स देखो कहाँ पर है, 2 के नेबर्स हैं 3, राइट। तो ये 0,3 के लिए कॉल करेगा, ठीक है। अब अगेन 0,3 को 1 मार्क कर दो।
3 के नेबर्स, मैं 3 के नेबर्स में अगर ये फॉर लूप की तरह थ्रू जाऊंगा, बट 3 के नेबर्स बचे ही नहीं हमारे पास, करेक्ट। तो मैं मेरा रिकर्सिव कॉल क्या करेगा, बैक आएगा, पेरेंट कॉल पे वापस आएगा। मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, पेरेंट कॉल पे वापस आया। अब 2 के सिर्फ एक ही नेबर्स थे, राइट, और कोई नेबर है नहीं, तो अगेन पेरेंट कॉल वापस फिर से वापस आ जाएगा। 1 के भी सिर्फ एक ही नेबर थे, 2, जिसके लिए कॉल खत्म हो गया, अब ये अगेन वापस आएगा, राइट। एंड नाउ 0 के जो नेबर्स थे 1 के लिए रिकर्सिव कॉल हमने चलाया था, बट इसका एक और नेबर था 3, तो ये रिकर्सिव कॉल यहाँ से खुलेगी, राइट, फॉर 0,3, राइट, बट ये नहीं चलेगा, क्यों? आप देखो इफ कंडीशन, अगर इक्वल्स टू 1 है, ये 1 है यहाँ पे, करेक्ट, एंड इसका जो वैल्यू है जो हमारे हम 2D RLs में स्टोर कर रहे थे वो भी 0 होना चाहिए, मतलब ये क्या इंश्योर कर रहा है कि वी हैव नॉट विजिटेड दैट नेबर, बट यहाँ पे क्या है यार, 1 है, वी हैव ऑलरेडी विजिटेड दैट नेबर व्हेन वी मूव फॉरवर्ड वाया द 1 नेबर ऑफ 0, राइट, तो इसीलिए ये कॉल नहीं चलेगी। तो देखो ये हमारा एक स्मार्ट वर्क है, दिस इज अ स्मार्ट वर्क वी आर डूइंग टू, दिस इज द स्मार्ट वर्क वी आर डूइंग दैट वी आर नॉट विजिटिंग द विजिटेड नेबर, not visiting the visited neighbor, I'm just writing it like that, visited neighbor। तो इससे क्या हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी, राइट। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब 0,0 कॉल खत्म हो गया, अब हम 1,1 के लिए कॉल शुरू करेंगे। 1,1 के लिए कॉल शुरू होगा। अब देखो 1 के नेबर कौन से हैं, 1 के नेबर हैं 2, राइट, सो इट विल कॉल फॉर 1,2 बिकॉज इसमें जो एंट्री 1,2 अभी भी वो 0 ही मार्क्ड है। सिंस आपने कॉल किया, सबसे पहले 1,1 को मार्क करो एज 1, right, 1,1 is not there, 1,1 is here, then you marked 1,2 as 1। ठीक है, अब 2 के नेबर्स पे जाओ, 2 के नेबर्स कौन है यार, 3, राइट, so I will call for 1,3 again, DFS call। देखो I, IT is the neighbor of the jth element, jth node, ठीक है। तो 2 का नेबर 3 था, तो मैं I, 3 को भी मार्क कर दूंगा, राइट। अब 3 के नेबर्स कोई भी नहीं है, सो माई पेरेंट कॉल विल ट्रेस बैक। तो 1,1 के सिर्फ एक ही नेबर थे, नहीं सॉरी, ट्रेस बैक टू 1,2, 1,2 के सिर्फ एक ही नेबर थे 3, जो कि मतलब सारे नेबर्स खत्म हो चुके हैं, आई विल ट्रेस बैक अगेन। 1,1 के सिर्फ एक ही नेबर थे, सो ऑल द नेबर्स हैव बीन फिनिश्ड, आई विल ट्रेस बैक, मतलब ये DFS कॉल खत्म हो गई, ठीक है। ठीक है, अब हम किसके लिए कॉल करेंगे, एक बार तुरंत से देख लेते हैं। अब हम कॉल करेंगे 2,2 के लिए, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। 2,2 किसको कॉल करेगा यार, सबसे पहले तो ये खुद को मार्क करेगा, 2,2 सबसे पहले खुद को मार्क करेगा, बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड इन द आंसर, राइट। ठीक है, अब इसके बाद 2 का नेबर्स कौन है, 3, सो इट विल कॉल फॉर 2,3। अब 2,3 को भी वापस से 1 से मार्क कर दो, राइट, बिकॉज देयर इज अ नोड एग्जिस्टिंग इन 2,3। इफ यू रिमेंबर द ग्राफ वाज लाइक दिस, 0, 1, 3, 2 एंड दिस वाज पॉइंटिंग टू दिस, राइट। तो देखो 2 से 3 के बीच में डायरेक्टेड ऐसे जो हमने मार्क कर दिया। अब 3 के नेबर्स देखो, 3 के नेबर्स नहीं है यार, तो इट विल ट्रेस बैक टू इट्स पेरेंट कॉल। 2,2 के एक ही नेबर थे 3 जो हमने बना दिया था, इट विल ट्रेस बैक, और यहाँ पे कॉल खत्म हो जाएगी, ठीक है। So one last call remains for the last node, that is 3. So I will again call the node for 3,3, right? And are there any neighbors of 3? You can see there are no more neighbors left for 3. तो ये यहीं से ये if statement जो है ये execute ही नहीं होगा, no DFS call would be made and it would be finished. तो जो remaining values यहाँ पे बचे वो definitely 0 से marked हो जाएंगे, already 0 से ही filled थे, तो मैं बस यहाँ लिख देता हूँ। And can you see that this is our required answer, 4 ones and then 3 ones and then 2 ones and everything is 0, so 3,3 will also be marked as 1, right, so this will be marked as 1, correct, so 4 ones, 3 ones, 2 ones and 1s. So let us verify this thing. Expected output is 4 ones, 3 ones, 2 ones and 1. So yes, we are on the same page and we have coded this logic. इसमें challenges क्या face कर सकते थे आप, जो मैंने भी face किया, थोड़ा सा टाइम लगा लिखने में कोड। आप ये तो तुरंत बता पाते कि DFS से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, और स्टैंडर्ड DFS का कोड नहीं चलता है यहाँ पे, हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ता है, ये 2D array list इन जावा और 2D वेक्टर इन C++ आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नाउ, सोचो क्या होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आप मेरे से सबसे पहले आर्ग्यू कर सकते हो कि भैया मेरे को लगता है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, सबसे पहले तो हम सारे सेल्स पे जा रहे हैं, राइट, सारे सेल्स पे जा रहे हैं, सो दैट गिव यू n²। और फिर आप क्या कर रहे हो कि आप सबके लिए DFS कॉल कर रहे हो, मतलब 0,0 के लिए रन किया, 1,1 के लिए किया, तो कितने नोड हुए, n, और आप हर एक के लिए DFS कॉल कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा n², तो ये हो गया n³। बट मैं कहूँगा नहीं यार n³ नहीं है, मैं अभी भी बोलूँगा n² होगा, क्योंकि
क्योंकि हम जो यहाँ जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं ना, ये हमारा हेल्प कर रहा है n स्क्वायर करने में। देखो फर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कि लेट्स से सारे ग्राफ कनेक्टेड थे एक दूसरे से, ठीक है, तो सारे नोड्स के लिए रिकर्सिव कॉल होगा, वहां पे तुम सारा नोड n स्क्वायर तुम्हारा लग जाएगा लेट्स से, राइट। बट वंस यू हैव विजिटेड ऑल द नोड्स, तो अगली बार जब आप सेम नोड पे जाओगे, विजिटेड नोड पे, तो वो काम नहीं करेगा, जैसे यहाँ नहीं किया था, राइट। तो अगली बार हमेशा n स्क्वायर से लेस होगा, n स्क्वायर से लेस होगा, मैं कैसे लिख दूँ इसको, लेस देन n स्क्वायर, उसके बाद और कम होगा, राइट। सो यू कैन से दैट द वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी n स्क्वायर। Hope that makes sense. Correct. Okay. And what is the space what will be the space complexity? बताओ यार. Space complexity would also be O of n square. एक n square जो आपका रिकर्सिव स्टैक के लिए लग जाएगा, रिकर्सिव, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिकर्सिव स्टैक डीएफएस कॉल करने में यार टोटल नंबर ऑफ नोड्स का भी रिकर्सिव स्टैक लगता है। क्यों लगता है, डीएफएस की वीडियो आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लस आप जो एरे लिस्ट यूज कर रहे हो, 2D एरे लिस्ट, राइट, सो इट वुड बी O of 2n स्क्वायर प्रिसाइजली, राइट, बट इग्नोरिंग द कॉन्स्टेंट्स इट वुड बी O of n स्क्वायर। ठीक है, ग्रेट यार। चलो अब इस कोड को कंपाइल एंड रन करते हैं। व्हाइल इट इज कंपाइलिंग एंड रनिंग, लेट अस सी व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n क्यूब, ठीक है, बट हमने n स्क्वायर में ही कर दिया, तो वी वर मोर फास्टर देन द एक्सपेक्टेड वन एज वेल। ठीक है, और क्योंकि 10 100 है तो n स्क्वायर हमने क्या किया 10 power 4, so definitely that is less than 10 per 8, so that is why this code will get submitted. Let us now hit the submit button and then we will see the switch C++ code.